ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ رات کا تقریباً آخری پہر چل رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے کوئی سایہ سا گزرا ہے۔ میں بے ساختہ ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ کئی راتوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا میں نے خود میں ہمت مجتمع کی اور باہر آ کر جھانکا، لیکن کوئی بھی ذی روح وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا، شاید میرا وہم تھا، لیکن میں ابھی اپنے کمرے میں واپس جاتی اس سے پہلے ہی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ اس آدمی نے مجھے دوسرے کمرے میں گھسیٹ لیا تھا۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہاتھ میرے منہ پر کافی مضبوطی سے رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں کافی اندھیرا ہو رہا تھا، جبکہ اس آدمی نے بھی اپنے چہرے کو کالے رنگ کے کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ میں اس شخص کے قابو میں تھی۔ اس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے وجود سے خود کو دور کرنا چاہتی تھی، اس کو اس حرکت سے باز رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بستر پر گرا دیا تھا اور میرے ساتھ غلط کاری کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کو واسطے دینا شروع کر دیے تھے کہ میری ابھی عدت چل رہی ہے، اللہ کے واسطے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی ہوں، میرے دامن کو پاک رہنے دو۔ لیکن وہ ناہنجار شخص میری ایک فریاد نہیں سن رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی، بھلے میں بہت خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کے آگے خاندان کی تمام عورتیں کمتر تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کبھی خود کو دوسرے مردوں کے سامنے عیاں نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے خود کو چھپا کر رکھتی تھی، لیکن شوہر کے انتقال کے 10 دن بعد ہی میری عزت کو نہ جانے کس مرد نے نوچ لیا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس شخص نے میری عزت کو تار تار کرنے کے بعد مجھے زبردستی اٹھا کر میرے کمرے میں پھینک دیا تھا۔ وہ مجھے پھینک کر ابھی باہر جاتا، اس سے پہلے ہی میں نے اس کے چہرے پر موجود وہ کالا کپڑا نوچ لیا تھا، لیکن سامنے موجود اس شخص کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میری عزت کو تار تار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا۔ میرا نام نورین ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی 22 بہاریں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی گزاری ہیں۔ میں جلد شادی کی خواہش مند نہیں تھی، لیکن میری اماں چاہتی تھی کہ میری شادی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ میں دکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ جو شخص بھی مجھے دیکھتا تھا نظر ہٹا ہی نہیں پاتا تھا۔ اللہ نے مجھے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ مجھے اپنے حسن پر ناز تھا۔ لوگ میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں جب تیار ہوتی تھی تو ساری نگاہیں مجھے رشک سے دیکھتی تھی۔ میرے بہت سے ایسے کزنز تھے جو مجھ سے شادی کے خواب دیکھتے تھے، لیکن میں نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ تھا۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ میری جس سے شادی ہو وہ میرے معیار کا ہو۔ ایک روز میرے لیے میری خالہ ایک بہت ہی بہترین رشتہ لے کر آئی تھی۔ میری اماں جب ان لوگوں کے گھر گئی اور لڑکے کو دیکھا تو فوراً ہی رضامند ہو گئی۔ اس لڑکے کی بہن نے مجھے میری خالہ کے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ وہ اپنے کپڑے سلائی کروانے میری خالہ کے گھر آئی تھی اور وہاں پر انہوں نے مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان کا بھائی بہت لائق فائق تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی۔ میری اماں تو یہیں پر فدا ہو گئی تھی کہ وہ میری بیٹی ہر خوشی دے گا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اللہ نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اماں نے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی، کیونکہ میری خالہ نے بہت سی معلومات میری اماں کو ان لوگوں کے حوالے سے دے دی تھی اور ساتھ میں گارنٹی بھی دی تھی کہ یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ دراصل میرے خالو کے تعلقات میرے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میرے سسر میرے خالو کے بہترین دوست تھے، اسی لیے میری اماں وہاں پر میری شادی کرنے کے لیے مطمئن تھی۔ میری شادی کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ جب میری اماں نے فراز کے لیے مجھ سے پوچھا تو میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مجھے فراز سے کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ میرے معیار کے تھے، دکھنے میں وہ کافی ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے۔ ہم دونوں اگر ایک ساتھ چلتے تو چاند سورج کی جوڑی لگتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے میری سوچ کے مطابق لڑکا ملا ہے۔ خاندان کی ساری لڑکیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ پارلر میں مجھے جب تیار کیا جا رہا تھا تمام عورتوں کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ یہ ہمارے پارلر کی سب سے حسین دلہن ہے۔ اللہ نے مجھے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ میری جھیل جیسی آنکھوں میں، میرے گلاب کے
पंखड़ियों की मानिंद होंठ, रुई के गोले जैसे गाल जिस पर शबनम बिखरा हुआ था। बाज़ औक़ात लोगों को लगता था जैसे मैंने मेकअप से अपने गालों को संवारा है, लेकिन ये कुदरती गुलाबी थे। मैं जानती थी अगर आज मेरे शौहर ने मुझे मुकम्मल दुल्हन के रूप में देखा तो वो पागल हो जाएगी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और अल्लाह से शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया था। मेरा निकाह खैर व आफियत से हो गया था और कुछ रसूमात के बाद मेरी अम्मा ने कुरान पाक के साए तले मुझे रुखसत कर दिया था। मेरा इस्तकबाल मेरे ससुराल में काफ़ी बेहतरीन अंदाज में किया गया था। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामा हुआ था, जबकि मेरे चेहरे पर घूंघट दिया गया था। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ के लोग काफ़ी पर्देदार हैं। ससुराल में कुछ रसूमात के बाद ही मेरी नंदे मुझे मेरे शौहर के कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। मेरा दिल एक अलग ताल पर धड़क रहा था। न जाने मेरे शौहर का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए थे। मेरा दिल जैसे रुक सा गया था। हाथ पाँव ठंडे लगने लगे थे, जबकि माथे पर नन्हे-नन्हे पसीने के कतरे चमकने लगे थे। मेरे शौहर कदम ब कदम चलते हुए मेरे करीब आए और मेरे घूंघट को उठा दिया। कुछ पल के लिए वो बोलने के काबिल ही न रहे थे। मैं जानती थी कि वो मेरा हुस्न देखकर दीवाने हो जाएंगे, लेकिन ये सब मेरी खामख्याली थी। कुछ देर बाद खामोश रहने के यकदम ही उनकी चिंगाड़ती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। ये क्या मस्नूई सामान तुमने अपने चेहरे पर सजाया हुआ है? शायद मेरी बहन ने तुम्हें ये बताया नहीं कि मुझे ये औरतों का सजना संवरना और इस तरह रहना पसंद नहीं है। मैंने बेसाख्ता सर उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा था। मैं तो कुछ तारीफी कलमात सुनने के इंतजार में थी, लेकिन उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं अपनी जगह पर साकत हो गई थी। वो मजीद कहने लगे, अगर मेरे साथ आपको गुजारा करना है तो आपको मेरी सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा। मुझे औरतों का सजना संवरना कुछ खास पसंद नहीं है। आप ना किसी और के सामने सजेंगी और ना ही मेरे सामने। मुझे सादगी ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगी। अगर आप ऐसा करती हैं तो हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। मेरी आंखों में नमी सी आ गई थी, जबकि वो मुझसे नज़रें हटाकर कहने लगे, आपके पास आधा घंटा है। फ़ौरन ही लिबास वगैरह तब्दील करके मेरे पास आ जाएं, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। मेरी नींद का वक्त हो चुका है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खामोशी से बाथरूम में बंद हो गई थी। मुझे बचपन से सजने संवरने का बहुत शौक रहा था। मैं जब भी सजती संवरती थी तो मेरी अम्मा कहती थी कि बेवकूफ़ लड़की, शादी से पहले लड़कियां इतना तैयार नहीं होती, फिर शादी वाले दिन रूप नहीं आता। लेकिन आज अपने शौहर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे याद आ रहा था कि पार्लर में किस तरीके से लड़कियां मेरी तस्वीरें बना रही थी। मैरिज हॉल में मेरी कितनी तारीफ हो रही थी, लेकिन जिस शख्स के लिए मैं सजी सवरी थी उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने आधे घंटे से पहले ही अपना लिबास वगैरह तब्दील किया और अपने चेहरे से मेकअप साफ करके बाहर आ गई, जबकि मेरे सोचने के बिल्कुल उलट मेरे शौहर ने मुझे देखते ही मेरी तारीफों के पुल बांध दिए थे। वो कहने लगे, जो हुस्न सादगी में है वो इन मसनूई चीज़ों में नहीं। इनका बोलने का अंदाज अब बिल्कुल तब्दील हो चुका था। पहले वो जितने सर्द अंदाज में मुझसे बात कर रहे थे, उनका लहजा इतना ही प्यार भरा था। वो धीरे धीरे मुझ पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगे थे और मुझे एक पल इस बात का एहसास दिला रहे थे कि मैं उनके लिए कितनी अहम हूँ। मैंने तमाम मनफी ख्यालात को झटक दिया था और अपने शौहर की आगोश में सुकून की नींद सो गई थी। अगली सुबह मेरे लिए काफ़ी अलग सी थी। हर रोज़ मैं देर से उठने की आदी थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे सुबह 7 बजे ही उठा दिया था। मैंने कोई नखरा नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहती थी। मैंने हल्का फुल्का सा खुद को तैयार किया और सर पर दुपट्टा सेट करके खड़ी हो गई। मेरे शौहर ने एक नज़र मुझे देखा और मेरे माथे पर एक बोसा देकर मुझे अपने साथ बाहर ले आए। तमाम लोग हमारे ही इंतज़ार में थे। मैं ये भी समझ चुकी थी कि मेरे ससुराल वाले जल्दी उठने के आदी हैं, यानी मुझे सुबह सवेरे ही जागना होगा। सब ने मुझे बहुत इज्जत दी थी। काफ़ी देर से मैं खुद के वजूद पर किसी की निगाह महसूस कर रही थी। मैंने इधर उधर निगाह घुमाकर भी देखा, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आया जो मुझे देख रहा हो। मैंने सर उठाकर देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने सर झटक दिया। शायद मुझे वहम हो रहा था, लेकिन जब तक मैं वहां बैठी रही थी तब तक मुझे यही महसूस होता रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे शौहर तो किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, जबकि मेरी नंद वगैरह मेरे करीब ही बैठकर मुझसे बातें करने लगी। कुछ ही पल में मैं इन लोगों के साथ घुल मिल गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जितना जल्दी मैं सबसे घुल मिल जाऊंगी, इस माहौल में रच बस जाऊंगी, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। मेरे ससुर काफ़ी अच्छे इंसान थे। मेरी सास का इंतकाल कुछ अरसा पहले हो गया था। वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। सबसे ज़्यादा मेरे ससुर मुझे बहुत अहमियत दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनकी बेटी ही हूँ। ऐसा बहुत कम होता था कि ससुर बहू से इतनी मोहब्बत से पेश आए।
मुझे अपना आप बहुत बर्तर महसूस हो रहा था। शौहर भी इतना प्यार करने वाला मिला था और ससुराल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। लेकिन कहते हैं ना, बाज़ औक़ात आपकी खुशियों को आपकी ही नज़र लग जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। वक़्त अपनी रफ़्तार के मुताबिक गुज़र रहा था। कुछ रोज़ बाद ही मैं ये समझ चुकी थी कि मेरे शौहर को सादगी बेहद पसंद है। इसीलिए मैंने खुद को तमाम मस्नूई चीज़ों से दूर करके कुदरती हुस्न में ढाल लिया था। हमारी शादी को 6 माह हो गए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे हम दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान लड़ाई हो। लेकिन इन दौरान मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे मुसलसल कोई देख रहा हो। 1-2 बार मैंने अपने शौहर से भी इसका तज़किरा किया था, तो वो मेरा वहम बोलकर टाल चुके थे। मैं समझी शायद मेरा वहम ही होगा, लेकिन अगर मैं इस घर में ही अपनी निगाहें दौड़ा लेती, तो आज मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। एक रोज़ मेरे शौहर काफ़ी जल्दी बेदार हो गए थे। उनको उठना देखकर मैं भी उनके साथ ही उठ चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ एक दफ़ा देखा और कहने लगे, "आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है ऑफ़िस, इसीलिए नाश्ता तैयार करो। मैं जब तक शावर लेकर आता हूँ।" आज से पहले वो कभी भी इतनी सुबह ऑफ़िस नहीं गए थे। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और नाश्ता तैयार करने चली गई। सुबह के वक़्त सब सो रहे थे। मेरे शौहर ने खामोशी से नाश्ता तनावल किया और मेरे माथे पर एक बोसा देकर ऑफ़िस के लिए निकल गए। मेरा दिल आज काफ़ी अजीब-सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। मेरी दुनिया उजड़ने वाली है। मैंने यकदम ही अपने शौहर को पीछे से आवाज़ देकर रोका और उनके सीने से लग गई। ये अमल काफ़ी बेख्तियार था। मेरे शौहर ने मुझे प्यार से अलहदा किया और कहने लगे, "परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। छोटा-सा काम आ गया है, ऑफ़िस जाना पड़ेगा।" जबकि मैं इन्हें अपने दिल की कैफ़ियत बताने से कासिर थी। वो मेरे गाल पर प्यार करके जा चुके थे। थोड़ी देर बाद ही मैं घर में आकर बाकी तमाम कामों के लिए लोगों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी और कामों को देखने लगी। अब इस सब के लिए मैंने मेज़ सजाई ही थी कि घर की लैंडलाइन पर एक कॉल आई, जिसको मेरी नंद ने उठाया था। सबकी निगाहें मेरी छोटी नंद पर ही जमी हुई थी, जिसके चेहरे के रंग उड़े जा रहे थे। मेरे ससुर बेसाख्ता अपनी जगह से खड़े हुए और मेरी नंद के हाथ से टेलीफोन लेकर अपने कान से लगाया। थोड़ी देर पहले जो हालत मेरी नंद की थी, अब वो मेरे ससुर की हो रही थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी तहम्मुल से बात की और आने का बोलकर कॉल रख दी। हम सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और अपने छोटे बेटे को देखते हुए कहने लगे, "घर की सफाई करवा लो, मैं अस्पताल जा रहा हूँ।" मेरे रंग उड़ चुके थे। घर के बाहर मेरे शौहर ही थे। मैं बेसाख्ता अपने ससुर की तरफ बढ़ी और बेयकीनी में लहजे में कहने लगी, "आपकी बात का क्या मतलब है? घर की सफाई क्यों करवानी है? और आप अस्पताल क्यों जा रहे हैं? अब्बू, सब खैरियत तो है ना? फराज के हवाले से तो कोई इत्तला नहीं मिली है ना?" मेरा दिल अनजाने अंदेशे से धड़क रहा था, जबकि उन्होंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और कहने लगे, "फराज का इंतकाल हो गया। मैं अस्पताल जा रहा हूँ।" उनकी आवाज़ काफ़ी भारी हो रही थी। शायद वो खुद को रोकने के लिए रोने से रोक रहे थे। मैं बेजान होकर ज़मीन दोज़ हो चुकी थी, जबकि घर वालों का भी यही हाल था। थोड़ी देर बाद ही मंज़र तब्दील हो गया था और फराज की मैयत मेरी आंखों के सामने रखी हुई थी। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। मेरी शादी को महज़ 6 माह हुए थे और मेरा शौहर मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उन्होंने ना उठना था, ना उठे। और थोड़ी देर बाद ही इनकी तदफीन वगैरह कर दी गई थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रूखी-फीकी सी हो गई थी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। मैं पहले ही अपना बनाव-सिंगार छोड़ चुकी थी, लेकिन अब तो मुझे खुद का भी होश नहीं रहता था। एक लिबास को मैं 5-5 दिन तक पहने रखती थी। कोई भी मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता था, क्योंकि कुछ औरतों ने मेरी नंदों के दिमाग में ये खन्नास भर दिया था कि तेरी भाभी के कदम सब्ज़ हैं। जैसे ही वो तेरे भाई की ज़िंदगी में आई, 6 माह बाद ही तुम लोगों का भाई अल्लाह को प्यारा हो गया। घर में सबका रवैया मेरे साथ एकदम से तब्दील हो गया था। तो एक तो मैं अपने बड़ी दुःख और इतने सदमे में थी, ऊपर से लोगों के बदलते हुए रवैयों ने मुझे सदमे पर सदमा दे दिया था। लेकिन कौन इन जाहिल लोगों को समझाए कि इंसान अपनी ज़िंदगी लिखवा कर आता है। किसी का वजूद या उसका पैर भारी नहीं होता। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और एक रोज़ मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई थी। पहले जो मुझे अपने वजूद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस होती थी, अब मुझे अपने कमरे के पास किसी का साया नजर आने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। सारी सारी रात मैं जाकर गुजार देती थी। फराज के होते हुए मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता था। मैं पुरसुकून नींद सोती थी, लेकिन जब से फराज छोड़कर गए थे मुझे, मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। मैं अपने खदशे को किसी को बयान नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी मैं अब इन लोगों की ज़िंदगियों में वो मुकाम बरकरार नहीं रख पाई जो शादी के शुरुआती दिनों में था। क्योंकि फराज की मौत का ज़िम्मेदार ये सब कहीं न कहीं मुझे ही तो समझ रहे थे। अगर मैं किसी को ये बात बता भी देती तो सब मुझे पागल समझते, और एक रोज़ जब मैं कमरे से निकली तो मुझे न जाने किसी शख्स ने दबोचा था। मैं इस शख्स का चेहरा देख ही नहीं पाई थी, और देखते ही देखते इस आदमी ने मेरी इज़्ज़त को पामाल करके मुझे मेरे कमरे के बीच में फेंक दिया था। लेकिन मैं जाते-जाते जब मैंने उसके चेहरे से वो काला रंग का कपड़ा हटाया
और सामने मौजूद उसका चेहरा देखा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर का बाप यानी मेरा ससुर मौजूद था। उसने अंधेरे कमरे का फ़ायदा उठाकर मेरी इज़्ज़त को नोच लिया था, जबकि सामने अपने ससुर को देखकर मेरे मुँह से बेसाख्ता, बेयकीनी में चंद अल्फ़ाज़ निकले थे। "अब्बू अ अब्बू आप?" जबकि वो मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गए थे। कुछ देर के लिए तो मैं अपनी जगह पर साकत रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ससुराल इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकता है। अपने बेटे की बेवा को, अपनी बहू को ही इस तरह कर सकता है और उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाल सकता है। हालाँकि अब तक तो उनकी बेटी की कफ़न भी मैली नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परेशानी और मुसीबतों ने मेरा रास्ता देख लिया। सदमे पर सदमे मुझे मिल रहे थे। पहले शौहर की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया था, लेकिन अब ससुर ने जो हरकत मेरे साथ की थी, उसने कहीं मुझे कहीं का मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं जानती थी, मैं जितना भी कहूँ, कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मेरे ससुर ने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है। मुझे अपना वजूद बेमोल लग रहा था। मेरे ससुर ने मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाया था। मैं किसको जाकर अपना दुःख बताती? कमरे में बैठी मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। मेरी खूबसूरती ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था। शौहर के इंतकाल के बाद सबसे पहले मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने वाला मेरे शौहर का बाप ही था। मैंने तहैया कर लिया था, मेरी इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं इस घर को और ख़ानदान को खैरबाद कह दूँगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वक़्त अपनी रफ़्तार के मुताबिक गुज़रता जा रहा था। मेरे सामने अब मेरे ससुर से बहुत कम मेरा होने वाला था। मेरी इद्दत से महज़ 10 दिन बाकी थे जब मेरे ससुर ने मेरे माँ-बाप को मेरे घर मंतूब किया था। मैं हैरान थी और वजह पूछने से कासिर थी, क्योंकि मेरी इतनी भी इस घर में औकात नहीं बाकी रही थी। हर 2-2 मिनट बाद मेरी नंद, मेरे देवर मुझे ज़लील करते थे। एक मेरे ससुर ही थे जो काफ़ी प्यार से मेरे साथ पेश आते थे। मैं समझती थी कि शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, इसीलिए अपने रवैये को मुझसे बेहतर किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो कोई और ही मंसूबा बनाए बैठे हैं। मेरे माँ-बाप हैरान थे और काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे थे। मेरे ससुर ने के मेरे माँ-बाप के बिल्कुल सामने टाँग पर टाँग रखकर बैठ गए थे, जबकि मैं भी सर पर दुपट्टा पहने अपने माँ-बाप के पहलू में बैठी हुई थी। मेरे ससुर मुझे देख के मेरे माँ-बाप की तरफ देखते कहने लगे, "आप लोग जानते हैं मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। आपकी बेटी हमारे खानदान की बहू है और हमारे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। आप लोग इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि मैं अपने बेटे का सगा बाप नहीं हूँ।" मैंने झटके से अपने ससुर की तरफ देखा था, जबकि मेरे माँ-बाप सर को हल्की सी जुम्बिश दे रहे थे। यानी ये लोग इस बात से वाकिफ़ थे। मेरे ससुर मज़ीद कहने लगे, "मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूँ और ये मेरे लिए मुमकिन है, क्योंकि सगे ससुर से निकाह जायज़ नहीं है, लेकिन सौतेले ससुर से निकाह जायज़ है। मैं आपकी बेटी के लिए नामहरम हूँ।" ये सुनने की देर थी और मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाई थी, "आप जैसा इंसान मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। बेटे का इंतकाल हुआ नहीं है और आप अपना सेहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। अम्मा-अब्बा, मैं मरती मर जाऊँगी, लेकिन इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। इसने वो किया है जिसका मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मैं अपना आपा खो चुकी थी। मेरे मुँह में जो आ रहा था मैं बोलती जा रही थी, जबकि मेरे ससुर खामोशी से मुझे देख रहे थे। मैं मज़ीद कुछ कहती कि अचानक ही मेरी अम्मा अपनी जगह से खड़ी हुई और मेरे मुँह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। मेरी अपनी माँ साकत होकर देख रही थी मुझे। वो कहने लगी, "चुप करके बैठ जा यहाँ। तुम्हारी बकवास मैं सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम जानती हो तुम एक मनहूस लड़की करार दे दी गई हो। मुआशरा तुम्हें कबूल नहीं कर रहा। सब यही कह रहे हैं कि ये जिससे भी शादी करेगी इसका इंतकाल हो जाएगा। अगर तुम्हारा ससुर तुमसे शादी करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है?" मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रही थी। ये वही औरत थी जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी और आज किस तरीके से बातें कर रही थी। मैंने अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए सर को हल्की सी नफी में हिलाया और इनकी बात का यकीन दिलाने लगी कि ये आदमी ठीक इंसान नहीं है। लेकिन ना मेरी बात मेरे अब्बा ने सुनी थी और ना ही मेरी अम्मा ने, क्योंकि वो जानते थे कि अब कोई भी इंसान से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम एक बेवा हो, ऊपर से मनहूस करार दे दी गई हो। मेरे माँ बाप ने मुझे सारी जिंदगी अपनी चौखट पर बिठाकर नहीं रखना था। जब मेरी इद्दत खत्म होने वाली थी, पहले ही मेरे लिए रिश्ता आ गया, तो मेरे माँ बाप को इस पर कोई एतराज नहीं था। ठीक मेरी इद्दत के बाद मेरा निकाह मेरे ससुर से करवा दिया गया था। जब मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी थी। शादी वाली रात जब मेरा ससुर मेरे शौहर बनकर मेरे सामने आया था ठीक शादी वाली रात जब मेरा ससुर मेरा शौहर बन के मेरे सामने आया था, तो मुझे अपना आप ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस हो रहा था। इसी रात ही मेरे ससुर ने मुझ पर ये बात अयां की थी कि पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं जब ही तुम पर आशिक हो गया था और मैंने इस पल ही तहैया कर लिया था कि मैं तुमसे ही निकाह करूँगा। और मैं नहीं जानता था कि कुदरत मुझे इतना हसीन मौका भी दे सकती है। मुझे इस हैवान इंसान के वजूद से घिन आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। इस माशरे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ
میرے سسر کے بچوں نے ان سے رشتہ ختم کر لیا تھا، جبکہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور وہ اپنی عمر سے کافی کم لگتے تھے۔ اس لیے ان کی جوڑی میرے ساتھ کافی اچھی لگتی تھی۔ ان کو مجھے بناؤ سنگار میں دیکھنا بہت پسند تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے حالات کے آگے ہارتے ہوئے اپنی ضد چھوڑ دی تھی اور ان کا ساتھ قبول کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں آج بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے نفرت باقی ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان کو معاف نہیں کر پائی تھی، جبکہ انہوں نے مجھے اپنے اس عمل کی کئی دفعہ معافی مانگی تھی، لیکن آج بھی لوگوں کی نظروں میں میرا کردار مشکوک ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ ایک بیوہ حسین و جمیل عورت نے اپنے سسر کو اپنا عاشق بنا ڈالا۔ غلطی چاہے ہمیشہ مرد کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بدنامی ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ دنیا کی انگلیاں عورت پر اٹھتی ہیں۔ اس سارے واقعے میں جو بدنامی، جو ذلت میرے حصے میں آئی تھی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تھی۔